آپ سبھی کا خیر مقدم ہے آپ کے اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل چوک اینڈ ڈسٹر اکیڈمی میں ایک بار پھر سے۔ اور آج آپ لوگوں کے سامنے میں حاضر ہوں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ جیسا کہ آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ ہم لوگ یو پی ایل ٹی گریڈ کے جو ہے وہ ریویژن کلاس میں ہیں، اور ریویژن کلاس میں ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے وہ چل رہا ہے علم بیان۔ علم بیان کے ہم نے بتایا تھے آپ کو 4 ارکان ہوتے ہیں۔ ایگزام میں سوال بھی آتا ہے کہ علم بیان کے کتنے ارکان ہیں، تو جتنے بیان میں حرف ہیں با یا الف و نون یعنی کہ 4 حرف ہیں، تو اس کے جو ہے وہ 4 ارکان ہوتے ہیں۔ پہلا تشبیہ، دوسرا استعارہ، تیسرا مجاز مرسل اور چوتھا کنایا۔ تو ہم لوگ جو ہے وہ مجاز مرسل پہ آج کی بات کریں گے یا آج کے سیشن میں گفتگو کریں گے۔ تو چلیے پھر بنا کسی دیری کے آج کے اپنے سیشن کو شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھے ہیں پریویس لیکچر تو آپ سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ پلے لسٹ میں جا کے چیک کر سکتے ہیں۔ تو چلیے پھر شروع کرتے ہیں۔ یہ علم بیان کی ایک اہم قسم ہے جب لفظ اپنے حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال ہو کہ ان کے حقیقی اور مجازی معنی میں تشبیہ کا تعلق نہ ہو بلکہ اس میں کوئی اور ہی تعلق پایا جائے، اسے ہم لوگ مجاز مرسل جو ہے وہ کہتے ہیں۔ یعنی کہ وہ حقیقی اور مجازی معنی جو ہے وہ استعمال ہوں دونوں میں، لیکن دونوں میں تشبیہ کا جو ہے وہ تعلق نہ ہو، کیونکہ حقیقی کا تعلق جو ہے وہ کس سے ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے آپ کا تشبیہ سے، اور مجازی معنوں کا جو استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے استعارہ سے۔ یہ بات ہم لوگ جو ہے وہ پریویس کلاس میں کر چکے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں مجاز مرسل کی جو ہے وہ ایک مثال ہے۔ غم ہستی کا اسد کس سے ہو جز مرغ علاج، شمع ہر رنگ میں جلتی ہے صبح ہونے تک۔ یہ جو ہے وہ مجاز مرسل کی کیا ہے؟ ایک مثال ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں مجاز مرسل کی جو ہے وہ کتنی اقسام ہیں۔ ویسے تو بہت ساری اقسام ہوتی ہیں، لیکن جو 6 اقسام ہیں وہ کیا ہیں؟ بہت اہم ہے، اور ایگزام میں جو ہے وہ انہی 6 سے جو ہے وہ ایگزام میں سوال آتے ہیں۔ تو انہی 6 اقسام کو جو ہے وہ ہم لوگ دیکھیں گے، اور اسی سے جو ہے وہ اگلی کلاس میں یا کہہ سکتے ہیں آنے والے سیشن میں جو ہے وہ گفتگو کریں گے۔ تو پہلی جو مثال ہے وہ ہے جز بول کر کل مراد لینا۔ جز کا مطلب ہوتا ہے کوئی حصہ، ٹھیک ہے؟ تو اسی طریقے سے جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہاتھ میں چوٹ لگ گئی، تو ہاتھ میں چوٹ لگنا الگ بات ہوتی ہے، لیکن اگر ہماری انگلی میں چوٹ لگ جاتی ہے تو ہم تب بھی کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں چوٹ لگ گئی۔ تو جز بول کر کل مراد لینا یعنی کہ چھوٹی چیز میں جو ہے وہ ہم لوگ پورے کو جو ہے وہ اس میں استعمال کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم لوگ کہتے ہیں کہ کل پڑھ لو، تو یہاں پہ کل کا مطلب کیا ہے؟ کل جو ہے وہ ایک کل ہے، لیکن ہم نے پڑھا ہے کہ کتنے کل ہو جاتے ہیں؟ 4 کل ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم لوگ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھ لو، ٹھیک ہے؟ تو سورہ فاتحہ کیا ہے؟ پوری سورت جو ہے وہ ہمیں پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جز بول کر ہمیں جو ہے وہ کل مراد لینا ہوتا ہے۔ اس کا ایک شعر ہے، یہ دیکھتے ہیں شعر کون سا ہے، اور اسی پہ جو ہے وہ آگے گفتگو کرتے ہیں۔ شنگ پھینکے ہیں میری قبر پہ گل کے بدلے، گالیاں دے رہے ہیں پشے مرگ بھی کل کے بدلے۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ کل استعمال کیا گیا ہے۔ تو کل کا مطلب یہاں پر جو ہے وہ چاروں کل کی ہیں۔ جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں یا کسی کے مرنے پر ہم لوگ ثواب کے لیے پڑھتے ہیں تو اسے ہم لوگ کل کہتے ہیں۔ تو اسی طرح سے الحمد سورۃ فاتحہ کا نام ہے۔ تو جب ہم لوگ الحمد کو جز ہوتا ہے اور اس کے بدلے ہم پوری سورہ فتح یا سورہ فاتحہ کے ساتھ جو ہے وہ دعائیں وغیرہ پڑھتے ہیں، تو اسی میں جو ہے ہمارے چاروں کل جو ہے وہ شمار کیے جاتے ہیں، یعنی کہ وہ کل میں شمار کی جائے گی۔ اسی طرح اس نے کانوں میں انگلیاں رکھ لی، تو کانوں میں اس نے انگلیاں نہیں رکھی ہیں بلکہ ایک کان میں جو ہے اس نے انگلیاں رکھی ہیں۔ اسی طریقے سے اگلی جو اقسام ہے ہماری وہ ہے کل بول کر جز مراد لینا، یعنی کہ پورا بول کر ہم لوگ جو ہے وہ ایک حصے پر جو ہے وہ بات کرتے ہیں۔ جیسے یہ مصرع ہے، میں نے بازار سے قلم خریدا۔ تو یہاں پہ بازار جو ہے وہ ہمارا کیا ہو جائے گا؟ کل ہو جائے گا، یعنی کہ پورا بازار۔ لیکن ہم نے بازار سے نہیں خریدا بلکہ بازار سے کسی دکان سے خریدا ہے۔ دکان کیا ہے؟ اس کا ایک جز ہے، یعنی کہ ایک حصہ ہے۔ جو لفظ کل کے لیے واضح کیا گیا ہو اسے جز کے معنی میں استعمال کرنا۔ جیسے میں نے ابھی اوپر آپ کو بتایا، میں نے قلم بازار سے خریدا، تو میں بازار سے نہیں بلکہ ایک دکان سے جو ہے اسے خرید کر لے کر آیا ہوں۔ تو اسے ہم لوگ بولتے ہیں کیا؟ کل بول کر جو ہے وہ جز مراد لینا۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد
सबब बोल कर मुसब्बब मुराद लेना, ये भी जो है वो एग्ज़ाम में आता है। सबब बोल कर नतीजा मुराद लेने से मुराद ये है, जैसे दुनिया में जितने भी काम हो रहे हैं वो कोई ना कोई सबब के बाइस होते हैं। बाइस का मतलब होता है वो किसी न किसी वजह से या किसी न किसी कारण से होते हैं। जैसे बादल खूब बरसा, यहाँ बादल जो है वो सबब है, जबकि बादल नहीं बरसा बल्कि बरसात से पानी आया है, यानी कि बादल से जो है वो पानी बरसा है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, मुसब्बब कहते हैं। तो इसी तरीके से एक और शेर की मिसाल देखते हैं। पानी था आग, गर्मी रोज़ हिसाब थी, माही जो शेख मौज तक आई कबाब थी। तो इस तरीके से ये क्या है, सबब बोलकर जो है वो हमने क्या लिया, मुसब्बब मुराद लिया है। ये उसकी क्या थी, एक शेरी मिसाल थी। अगला सवाल है ठीक उसी का उल्टा हो जाता है, जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा सबब बोलकर मुसब्बब मुराद लेना, तो यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, मुसब्बब बोलकर सबब मुराद लेना। जैसे चूल्हा जलता है उसकी एक किस्म है, चूल्हा जलता है उसकी एक किस्म है। असल में चूल्हा नहीं जलता है बल्कि चूल्हे के अंदर जो है वो आग जल रही है। यहाँ पे देखते हैं उसकी एक किस्म है और आग जल रही है। आग नतीजा है किसी चीज़ के जलने का, तो आग किसी ईंधन से ही जलेगी और चूल्हा जल रहा है। इससे मुराद है चूल्हे में ईंधन जल रहा है, यानी कि चूल्हे में आग तो जल रही है लेकिन आग के लिए हमें ईंधन की ज़रूरत है। ईंधन हमारे लकड़ी हो सकती है, कोयला हो सकता है या और दीगर चीज़ें हो सकती हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो है वो चूल्हा जल रहा है, तो यहाँ पर जो है वो चूल्हे में जो है वो असल में ईंधन जल रहा है। ये जो है वो हमारा मुसब्बब बोलकर जो है वो सबब मुराद लिया जाता है। इसी की एक मिसाल देखते हैं नीचे की तरफ। आइए, इस कदर खाया तेरी फुरकत में गम, दिल हमारा ज़िंदगी से सैर है, दिल हमारा ज़िंदगी से सैर है। ये क्या है, हमारी एक शेरी मिसाल है, एग्ज़ाम में आ जाती है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके बाद है मज़रूफ़ बोलकर ज़र्फ़ मुराद लेना, ये भी इम्पोर्टेंट है, अक्सर एग्ज़ाम में आ जाता है। जैसे इसकी मिसाल देखते हैं, मज़रूफ़ बोलकर ज़र्फ़ मुराद लेने से सालन ढाँप दो, शरबत ले आओ और मेरे लिए पानी लाओ। इनमें सालन का बर्तन, शरबत का बर्तन और पानी का बर्तन मज़रूफ़ है, क्योंकि मज़रूफ़ का मतलब जो होता है वो बर्तन से होता है और ज़र्फ़ वो होता है जो उसके अंदर होता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो है वो सालन ढाँप दो, यानी कि इसका मतलब ये नहीं है कि सालन को ढक दो, इसका मतलब ये है कि जिस बर्तन में सालन है उसे क्या कर दो, ढक दो। शरबत ले आओ, शरबत लाना है लेकिन वो किसी बर्तन में लेकर आना है। तो ये क्या होती है, हमारी मज़रूफ़ बोलकर ज़र्फ़ मुराद लिया जाता है इन मिसालों में। अक्सर एग्ज़ाम में जो है वो ऐसे भी आते हैं। आइए इसकी एक शेरी मिसाल देखते हैं। ये इश्क में रहे गर्मियाँ ना, वो हुस्न में रही शौखियाँ, ना वो गज़नवी में तड़प रही, ना वो ख़म में ज़ुल्फ़े अय्यास में। तो ये क्या है, एक शेरी मिसाल है, तो अक्सर एग्ज़ाम में आ जाए तो नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, इसका उल्टा है ज़र्फ़ बोल कर मज़रूफ़ मुराद लेना। मसलन फव्वारा उबल रहा है, बल्कि फव्वारा उबल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि फव्वारा उबल रहा है, बल्कि फव्वारे में जो पानी है वो जो है वो ऊपर की तरफ उछल रहा है, जो हमें उबलता हुआ नज़र आ रहा है। तो आगे देखते हैं, फव्वारे से पानी मुराद है, फव्वारा ज़र्फ़ है और पानी जो है वो मज़रूफ़ है। और मैंने पानी के 2 गिलास पिए, आपने पानी के 2 गिलास नहीं पिए हैं, यानी कि आपने गिलास एक ही बार आया है, उसमें पानी 2 बार जो है वो क्या हुआ है, भरा हुआ आपको मिला है और आपने जो है वो दोनों पिए हैं। तो यही क्या हो गई, हमारी मज़रूफ़ मायत। आइए इसकी एक शेरी मिसाल देखते हैं। खून आँखों से निकलता ही रहा, खून आँखों से निकलता ही रहा, दिल का फव्वारा उछलता ही रहा। तो इस तरीके से ये कुछ इक़साम थी जो आपको याद रखनी है एग्ज़ाम के हवाले से। इसके अलावा मदाद मुरसिल की जो है वो और दिगेर इक़साम है, उन पर भी जो है वो हम लोग रोशनी डाल लेते हैं। मदाद मुरसिल की कुछ दिगेर इक़साम भी हैं, जिनमें आला बोल कर वो चीज़ मुराद लेना जिससे वो आला बना हुआ। आगे है माजी के हालत से मौजूदा हालात मुराद लेना, ये भी क्या है, एक इक़साम है। मुस्तकबिल को मौजूदा हालात से ताबीर करना वग़ैरह जो है वो शामिल हैं। कैसे शामिल हैं, आइए देखते हैं। इस पर एक और
नजर ثانی देखते हैं, आला बोल कर वो चीज़ मुराद लेना जिससे वो आला बना हो। जैसे उसकी एक खूबसूरती मिसाल अशार के तौर पे कुछ यूँ है, उर्दू है जिसका नाम जानते हैं दाग, हिंदुस्तान में धूम हमारी ज़बां की है। ये जो है वो दाग दहलवी का शेर है। तो यहाँ पर जो है वो ज़बान को क्या बताया गया है, आला बताया गया है। आपने सुना भी होगा कि ज़बान से तेज़ कोई हथियार नहीं होता। इंसान जो है वो सब कुछ माफ़ कर देता है, लेकिन किसी के बुरे अल्फाज जब उसके कानों में पड़ते हैं तो उसे कभी माफ़ नहीं करता। तो ज़बान को यहाँ पर एक आला के तौर पे क्या किया गया है, इस्तेमाल किया गया है, यानी कि हथियार पे जो है वो इस्तेमाल किया गया, एक खंजर के तौर पे इस्तेमाल किया गया। यहाँ पर ज़बान आला है, लेकिन मुराद जो है वो बोली से लिया गया है, जो मुंह वाली ज़बान से बोली जाती है। इसके बाद एक और आगे देखते हैं, माजी के हालात से मौजूदा हालात मुराद लेना। माजी का मतलब होता है पास्ट और मौजूदा का मतलब होता है परसेंट। ठीक है, यानी कि अगर हम लोग किसी इंसान को उसके पात से जज करते हैं तो वो हमारा मदाद मुरसिल की इस इक़साम में जो है वो आता है। इसकी एक मिसाल है, शेरी मिसाल है, आप लोग देख लीजिएगा। इलाही क्या क्या तूने आलम में तलातुम है, गज़ब की एक मुश्त खाक ज़ेर आसमां रख दी। तो इस शेर में हमें पता चल रहा है कि जो चीज़ पहले बनी हुई है वो आज भी क्या है, मौजूद है, और उसमें जो है वो एक तूफ़ान से जो है वो क्या आ रहा है, उठ रहा है। इसके बाद आगे देखते हैं, मुस्तकबिल को मौजूदा हालात से ताबीर करना, यानी कि मौजूदा हालात का मतलब होता है हाल और मुस्तकबिल होता है फ्यूचर। आप लोग देखते हैं कि मुस्तकबिल को मौजूदा हालात से ताबीर करना, जैसे ज़ेर तरबियत या ज़ेर तालीम डॉक्टर को डॉक्टर साहब कहना। मान के चलिए कोई बच्चा जो है वो MBBS की जो है वो पढ़ाई कर रहा है, तो जब हम लोग MBBS के डॉक्टर को देखते हैं या MBBS के एक तालिब इल्म को देखते हैं, वो घर में छुट्टियों पे आता है तो आसपास के जो लोग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, डॉक्टर साहब कहने लगते हैं, जबकि वो आने वाले वक्त में क्या बनेगा, डॉक्टर बनेगा। इसी तरीके से आप टीचर की पढ़ाई कर रहे हैं या आप UPSC की पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप लोगों को जब आप कहीं आसपास जाते हैं तो आप लोग को क्या करते हैं, वो रिस्पेक्ट देते हैं। हालांकि वो आपका मुस्तकबिल है, मौजूदा हालात में लोगों को जो तैयारी करते हैं उसे जो है वो मुस्तकबिल का जो है वो हम लोग मान लेते हैं। तो यही हमारा क्या है, मजाज मुरसिल है। ठीक है, इसके बाद ये एक शेरी मिसाल देख लेते हैं। बेजार है सब एक भी शफक़त नहीं करता, सच है कोई मुर्दे से मोहब्बत नहीं करता। ये कौल हज़रत फ़ातिमा सगरा का है, जो बीमार थी और उन्होंने ख़ुद को जो है यहाँ पर मुर्दा कहा है। तो इस तरीके से अभी नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर में हो जाएंगे, क्योंकि मौजूदा हालात से उनको जो है वो आगे आने वाले वक्त के लिए क्या है, पता चल जाता है। तो ये एक कुछ टॉपिक्स थे, कुछ एक शेर थे, कुछ एक इसनाफ थी जो एग्ज़ाम के हवाले से आती हैं। और अब हमारा सिर्फ एक टॉपिक बाकी है और वो है कनाया, जिस पर हम लोग जो है वो अगली क्लास में मिलेंगे। आज के सेशन में इतना ही है। कोई बच्चा बैच में इनरोल होना चाहता है तो हमारा ये नंबर है 9045220432। इस नंबर पे आप लोग जो है वो रब्ता कर सकते हैं। आज के सेशन में इतना ही, कल मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया।